अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। I'm here back with a request for Ramadan Kareem. Since mashallah Ramadan is going to start in Middle East and in the other parts of the world. So greetings for Ramadan everyone. रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक आप तमाम को जो खलीज ममालिक और बैरून ममालिक में आज कल से यानी सहर होगी अब इंशाल्लाह और कल से पहला रोज़ा होगा। अल्लाह हमारे रमज़ान कबूल फरमाए। तो एक मैं रमज़ान के साथ आपका दोस्त नवाब मीर मोहम्मद मोइनुद्दीन अली ख़ान फिर से उम्मीद करता हूँ दुआ की गुजारिश करता हूँ और मैं एक रिक्वेस्ट के साथ आप लोगों के साथ आया हूँ कि और उम्मीद करता हूँ कि सब घर पे होंगे और सब अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। So my request to everyone, stay at home, protect our country, protect our city, protect our family and protect everyone. So here वक्त के साथ हमने समझौता करना सीख लिया, पता ही नहीं चला हमने कब सब्र करना सीख लिया। वक्त के साथ हमने सब्र करना समझौता करना सीख लिया, पता ही नहीं चला कब हमने सब्र करना सीख लिया। ज़िंदगी के बहाव में हम इस कदर बहते चले गए, ज़िंदगी के बहाव में हम इस कदर बहते चले गए, जब पलट के देखा तो हमने अपने आप को खो दिया। तो इसी मैसेज के साथ ग्रीटिंग्स फॉर रमज़ान एंड रिक्वेस्ट फॉर रमज़ान टू एवरीवन। वी नेवर थॉट दैट दिस टाइम विल कम that we have to stay at home to protect our country, protect ourselves, protect our city, protect our family, protect our culture, protect our values, moreover protect the humanity. So I'm here with a request to you, in this Ramadan, the entire world, everyone is seeking forgiveness, everyone is seeking protection from the pandemic attack, so-called coronavirus. So Allah se dua hai कि Allah हमें इसे हिफाजत अता फरमाए, and we thank Almighty Allah that we are still alive. There are many people who are, died because of this. There are many people who are affected for this. So this Ramadan, I would like to request each and every member, you, that please pray for humanity. Try to offer salah and prayers, supplications. Read Quran as much as if you can. Being at home, we can, seek forgiveness from Allah. We can request for blessings and mercy. एंड बेशक अल्लाह सतर माओं की मोहब्बत रखने वाला है एंड उसके हुक्म के बगैर पता नहीं हिलता। तो आज एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट फॉर all the families, for all the peoples, for their patience, for their efforts, and for all the doctors who are fighting with this disease. Though there is a lockdown, there are police officers, there are government officials, there are doctors, there are medical students, there are medical doctors and facilitators. They are supporting for coronavirus. They are the main reason, though their families at home, they are risking their lives for the protection of our humanity. So my request to each and everyone, this Ramadan, request you to pray for all the members. There are persons exist who do not have the capability of prayers. They are sick at home, they are sick at home, quarantined at home, they are quarantined in hospitals. So though we are able to, alhamdulillah, thank Allah, and we are alive. So my request, sincere request, to pray for everyone and अल्लाह को मना लीजिए। बेशक इंशाल्लाह अल्लाह रहम वाला है और 17 माओं की मोहब्बत रखने वाला है। एंड मोरओवर फ्रॉम टुमारो इंशाल्लाह रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा हैदराबाद में, इंडिया में है, तो मेरी 1-2 दिन में सारी दुनिया में। तो मुझे सबसे गुजारिश है, जो भी मेरे फॉलोअर्स है या जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, उन्हीं से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि जितना हो सका घरों पे नमाज़ कायम करें, बाहर ना निकले। अगर कुछ ज़रूरी काम है तो ही घर से बाहर निकले। और ज़कात वगैरह का भी आप जो है अच्छे से एहतमाम करें, अपने ख़ानदान में, जान पहचान में, अड़ोस पड़ोस में, सब जो मुस्तहिक़ हैं उनको तक पहुँचाइए। और ये मत सोचिए कि ज़कात आपकी कम निकल रही है ज़्यादा। ये वक्त ऐसा है जिसमें जान का भरोसा नहीं, माल का भरोसा नहीं। मौत से किसको रसवाई है? आज हमारी बारी है तो कल तुम्हारी बारी है। बेशक कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि
जितना हो सका चैरिटी करिए, हमें जान का कुछ भरोसा नहीं। ये वक्त ऐसा है जिसमें कोई माल वाला अमीर या गरीब कोई नहीं। जो अल्लामा इकबाल का शेर था, एक ही सब में है महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो ये वही मामला है, अल्लाह का मामला है। बेशक मसाजिद खाली हैं लेकिन अल्लाह सुनने वाला है। बेशक अपने दिल से पुकारिए, अल्लाह को मना लीजिए। हम बेशक ये हमारे गुनाहों का नतीजा है कि आज हम इस मुकाम पे हैं, और सारी इंसानियत आज से रुस्वा है, ना कि कोई कौम ना कि कोई रिलीजन। तो मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से, तमाम अपील है तमाम रिलीजन के लोगों से जो फॉलो करते हैं कि आप लोग भी एहतियात करें और सारी इंसानियत के लिए दुआ करिए। तो ये सारी इंसानियत के लिए बहुत बड़ा रिस्क है, और नेवर थॉट time will come like this, and 2020 will be remembered for life forever like this, and we'll have to spend our time in family. There are people who do not have any food, they are starving on daily basis. I witness many people in my locality, in my area. I do visit their homes, but Allah knows I cannot do much beyond the limits, beyond the set limits I have. So इसलिए मैं कहता हूँ कि मुस्तहिक़ तक पहुँचिए। And there are people who there are required of much need. There are no food available at home, but they are unable to express, and they believe on Allah. To be honest, yesterday only I meet one of my known person, and he was like, फुरकान भाई, यस हमें तो ज़रूरत है लेकिन हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते। तो बेशक ये हाल है। सॉरी आई एम क्राइंग, बट इट मेक मी डाई दो आई वॉज लिविंग, बट आई वॉज थैंकिंग अल्लाह फॉर एवरीथिंग दैट वी हैव फूड, वी कैन we can thank him, we can thank Allah and shukr Allah that we are still, there are many people who are affected due to lockdown, due to this virus. They are being mentally tortured. They are being questioned themselves why we have not died because of virus. Sorry, astaghfirullah. There are many people. So my request for everyone to, as much as you can, if you have the money, pray in the Ramadan, offer charity as much as we can, and that's all I have. And also I am now working from home. Alhamdulillah, but there are many people who are not going to any office or job. They are just they are restricted themselves at home. Their family, there are many people. One person is a bread and jam earner, and there are 6 to 7 members are dependent on him. So that's the reason. Now we need to think of it. There are many people who got affected. और मैं सोच रहा हूँ कि जो कहते थे क़ारून का ख़ज़ाना या हारून का ख़ज़ाना भी रहा तो बस नहीं होता, वही दौर आया है दोस्तों। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अल्लाह बेहतर जानने वाला है कि आज जो हालात हैं हमारे। तो रमज़ान में मैं यही गुजारिश के साथ आप लोगों के साथ आया था कि अगर हम लोग कुछ मदद कर सकते हैं तो करिए। बेशक आप लोग कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, और रमज़ान में ख़ास तौर पर रब को मना लीजिए। सोचा ना था कि ऐसा वक्त आएगा कि हमें इस कदर अपने घरों में बंद कर दिया जाएगा। तो गुज़रा हुआ कल याद ना कर, जो आएगा उसकी फरियाद ना कर, सोच कुछ मत और रब को राज़ी कर, और मिला सो वक्त बर्बाद ना कर। तो इसी मैसेज के साथ मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि इबादतों का एहतमाम करिए और स्टे होम, protect our country, protect our city, protect ourselves, protect our family, and protect the humanity. इंसानियत शर्मसार है आज। तो बेशक जो भी माहौल है अल्लाह बेहतर जानने वाला है। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाया कि हम कुछ मदद कर सकें। तो बेशक करिए और किसी के सामने हाथ मत फैलाइए। बेशक अल्लाह मदद करने वाला है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम मेरे दोस्त अहबाब का, मेरे जानने वालों का, और उन तमाम लोगों का जो लोग काफ़ी इमदाद कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा दिल खोल कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनके जज्बे को कबूल फरमाए और हमें दिखावे से बचाए, हमें अमल करे, हमारे इस अमल को कबूल फरमाए। आमीन व रब्बुल आलमीन। और हमारे रमज़ान में
बेशक ऐसा माहौल आ गया रमज़ान का, सोचा नहीं था मैं। चांद रात के माने क्या होते थे, रमज़ान की ब्लेसिंग्स एक अलग होती थी, तमाम चीज़ें अलग होती थी, लेकिन अब घर ऐसा माहौल है, कुछ नहीं कर सकते इसमें, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है और हमें नमाज़ें अदा करनी है वक्त पे, कुरान का एहतमाम करना है। इंशाल्लाह दुआ करें, आपके पास काफ़ी वक्त है, कुछ काम नहीं है। हमेशा हम लोग काम करते हुए मसाजिद को आबाद करते थे, नमाज़ पढ़ते थे, खुसूसी तौर पर रमज़ान में ये प्रैक्टिस होती थी। सब अपने तिजारत को तरजीह देते हुए, कामों को तरजीह देते हुए नमाज़ का एहतमाम करते थे। MNCs में, कॉरपोरेट्स में नमाज़ पढ़ते थे माशाल्लाह। लेकिन अब हमारे पास ऐसा वक्त है, घर वक्त बहुत है, तो जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो मेरी गुजारिश है कुरान की तिलावत करते हुए करिए, या नहीं तो कुरान सुनते हुए करिए। हेडफोन्स लगाकर आप कुरान भी सुन सकते हैं, कुरान आप सुन सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, आपके पास वक्त है तो बेशक जैसे जैसे सहूलतें हैं वैसे करिए और अल्लाह से राज़ी करिए, अल्लाह को राज़ी करिए और बेशक अल्लाह कबूल करने वाला है। तो इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है इंशाल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। लेकिन और जितना हो सका सबकी मदद करें, बेशक हम कर रहे हैं मैं जानता हूँ, और तमाम लोग जो रेंट नहीं दे पाते या जो भी वजूहात से जो परेशान हैं, तो उनका सोचें डेली वेजेस अर्नर्स का कि वो लोग लाइफ कैसी गुजर रही है उनकी, और जो स्ट्रगल कर रहे हैं। और फिल वक्त देयर आर मेनी पीपल हु आई नो दैट दे स्टक इन मिडिल ईस्ट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दे वेंट फॉर जॉब हंटिंग, दे वेंट फॉर विजिट वीज़ास, but they do not have any opportunities now. They are like home as there as well, so please pray for them as well. There are the bread earners for their family here in India. I witness there are many people whose families are struggling to get the benefits, basic needs of food. But what we thought being Hyderabadi, अरे उसका बेटा बाहर है, ये हमारे पास एक बहुत घटिया और ख्याल है जो हमारे पास गश्त करता है तमाम घरों में कि उसके पास बाहर बेटे हैं। लेकिन उनके हालात क्या है देखिए, अंदरूनी उनके पास मेडिकल पेशेंट्स कितने हैं देखिए। देयर आर मेनी फैमिलीज जिसके पेरेंट्स मेडिकली इल है, लॉट्स ऑफ मनी दे आर स्पेंडिंग ऑन द टैबलेट्स एंड मेडिसिन्स, और बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द मेडिकल फैसिलिटीज़। तो ये अल्लाह की तरफ से है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप तमाम बस जितना हो सका उससे ज़्यादा चैरिटी करिए, और ये मत सोचिए कि उसका बेटा बाहर है या दामाद बाहर है या बेटी बाहर है या उसके पास बहुत पैसा है। अजम्पशन की दुनिया नहीं है भाई, बी ऑनेस्ट, अजम्पशन की दुनिया नहीं है। हद से ज़्यादा पैसा खर्चा हो जा रहा है। पहले हम लोग पैसा कमाते थे, रोटेशन होता था, एक्सपेंडिचर होता था, पैसा कहीं से नहीं आ रहा। ऑल द डेली वेजेस वाले जो भी बिज़नेस करते थे, अपार्ट फ्राम मेडिकल शॉप्स, किराना शॉप्स और ये जो भी है फूड मार्केट्स वगैरह, उसके अलावा कोई भी बिज़नेस नहीं चल रहा है। कैब ड्राइवर्स जो MNCs में डेली जॉब करते थे 12 to 15 hours they used to drive. I remember, मॉम को हॉस्पिटल ले जा रहे थे. There was one old guy around senior citizen around 70 to 80 years I guess, but he is very fit. So मॉम को ले जाते हुए उनसे बात हुई, तो जब उन्हें पता चला कि भाई माशाल्लाह मैं कैब के ज़रिए अपना घर चला लेता हूँ, 2 लड़कियाँ हैं, दोनों की शादी करना है, तो माशाल्लाह खुशी हुई। देखिए आप ऐसे लोग थे। लेकिन तो आज मैं डैड के साथ ये भी जिक्र किया during my discussion while having a food, that what that guy is doing, how they are surviving, and now we cannot go anywhere outside. We need to protect ourselves. Don't roam anywhere, guys, especially youngsters. Police is warning us. They are seizing our vehicles, but still we are not listening. Why? Don't do that, please. अपना नहीं तो अपने माशरे का ख्याल करिए, वही सबसे बड़ी सुन्नत नबवी है। हमें दूसरों का ख्याल करना है और ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए जीना है, और हम मुसलमान इंसानियत के लिए एक मिसाल है। और हैदराबाद हमेशा से गंगा जमनी तहजीब देते हुए आया है। इंशाल्लाह मरे दम तक ये क़ायम रखेंगे। इस जज्बे के साथ हमें जीना होगा। एंड रिक्वेस्ट फॉर रमदान, प्रे फॉर दोस कपल who are waiting for the rahmat in the form of children. Pray for those men or women who are struggling for their jobs, for their careers, and who are struggling for basic needs, and also for those people who are medically ill and waiting to get well soon, to get cured from the disease. For all the medical patients, especially from COVID-19, whoever is fighting, it's very difficult time for their family. Whoever is going to be quarantined, people are quarantined at home, people are separating from their family, which is very difficult, which will definitely mentally torture the people as well. So now don't fear, be thank Allah that you are healthy and alive. So always seek forgiveness from Allah, always do shukr Allah ka shukr ada karte rahiye, and always offer as much as supplications, be with ablution, वज़ू करके रहिए, और इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करिए और शुक्र अदा करिए। और जितना हो सका आप
लोगों की मदद करिए, अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह हमारे इस काम से खूब अल्लाह ताला ख़तरे ख़तरे से दरिया भरेगा, और वी नेवर नो व्हेन थिंग्स विल change and how things will change. So that's the reason I am requesting, the only reason to came here with a video log today, to just to pass a message to the entire world, whoever is watching in the world, that Ramadan is the month of blessings. एक नेकी करोगे तो 70 नेकी पाओगे, अल्लाह ने वादा किया है. It's a month of blessings, और अल्लाह को राज़ी करे, अल्लाह से दुआ करे, और अल्लाह से दुआ करे कि हमें जल्द से जल्द खाने काबा का दीदार नसीब हो जाए, उम्रा और हज फिर से आसान हो, ओपन कर दिया जाए पब्लिक के लिए. ये काफ़ी तकलीफ़ की बात है, लेकिन अल्लाह की मसलियत अल्लाह जानता है. सो हाँ, मैं मिस कर रहा हूँ. इवन I was away from my family when I was in Saudi Arabia, but you know अल्लाह के बहुत करीब था, बेशक अल्लाह से जाने वाला है. सो दैट्स द रीज़न आई एम टेलिंग यू. जब भी होता था उम्रे को चले जाता था, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स द ब्लेसिंग आई हैव. सो with this request to everyone now, don't be emotional. I was a bit emotional on certain incidents of my life when I came to know about some people who know to whom I know, in relatives and all. There are many people who lost the jobs. There are many people I know that they lost the jobs and everything. So that's the reason my suggestion to everyone, that be careful, be thankful Allah for your healthy, and inshallah once the lockdown will finish, we will come back, we will fight back, inshallah. Definitely we will grow, we will succeed, because दी नहीं जाती तालीम परिंदों को उड़ने की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल खुले आसमानों की. जो रखता है हौसला आसमान को छूने की, वो परवाह करता नहीं ऊपर से नीचे गिर जाने की. तो बेशक इसी मकसद के साथ हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ रीबिल्ड होंगे इंशाल्लाह. दोस्त whoever is watching, youngsters, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, if you are confident, you can change anything, you can create anything, and you can achieve anything. So don't get confused, don't be nervous. मायूस मत होइए, मायूसी सबसे बड़ा कुफ्र है. और अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमें शिर्क से बचाए, बिदअत से बचाए, और हर बुरे काम से बचाए, और हमें कामयाबी अता फरमाए, हक़ और हलाल की कमाई. या इलाही, हम तुझसे नफ़ा व इल्म, मकबूल अमल, हलाल और तय्यब रोज़ी मांगते हैं. आमीन. या अल्लाह, तो हमें बेशक नफ़ा बख्श इल्म, ऐसा इल्म जिसमें नफ़ा हो, मकबूल अमल, ऐसा अमल जो मकबूल हो, और हलाल और तय्यब रोज़ी अता फरमा. ये अल्लाह से दुआ मांगे, और इसी मकसद के साथ मैं आप तमाम से इजाज़त चाहूँगा. इंशाल्लाह we'll connect again. Inshallah, if I get a time, definitely I'll come back and I'll upload a new video. Till that time, I request to entire family members, whoever is watching, my friends, my relatives, my colleagues, and my followers, stay home, stay safe, protect our country, protect our city, protect our family, and protect ourselves. And moreover, much important is protect the humanity. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.